السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کے مسائل کو لے کر، وہی مسائل جو نئے مسائل نہیں ہیں، بہت عرصہ پہلے سے مسائل ہیں۔ بچہ جانتا ہے کہ کراچی کے ایشوز کیا ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ کراچی کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے وعدے دعوے ہمیشہ سے کیے جاتے رہے ہیں، کلیمز کیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ مسائل حل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آخر مسئلہ ہے کیا؟ پولیٹیکل ول نہیں ہے، اور آپس میں مل بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کی بھی ول شاید اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ معزز مہمانوں کے ساتھ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے حکمران جماعت پی ٹی آئی سے فردوس شمیم نقوی صاحب نے۔ پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے سندھ میں، وفاق میں اور دیگر اور صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جن کی حکومت سندھ میں گزشتہ 2 سال سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے جو 2 ٹرمز تھیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عاجز دھامڑا صاحب نے۔ عاجز دھامڑا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ وفاق میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہوں۔ کراچی کے ووٹرز نے پی ٹی آئی پر انحصار کیا، پی ٹی آئی کو موقع دیا، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں سے منتخب ہوئے، لیکن آج بھی کراچی کے مسائل وہیں کھڑے ہیں جہاں کے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ پی ٹی آئی نے بظاہر کوششیں تو کی ہیں، پر ان کوششوں کا جب تک کوئی نتیجہ نہ نکلے تو ان کوششوں پہ کچھ کہنا کہ ہاں جی وہ سنسیئر ایفرٹس تھیں، یہ پریکٹیکلی عملاً ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی نے، کیونکہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب؟ دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ who controls the purse strings۔ اگر پرس اسٹرنگس ہوں گی تو اس کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر پرس اسٹرنگس پی ٹی آئی کنٹرول کرتی ہے تو پی ٹی آئی ذمہ دار، اور اگر پی ٹی آئی پرس اسٹرنگس نہیں کنٹرول کرتی صوبہ سندھ میں تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ کو جج کرنا پڑے گا اونلی آن اٹس ایفرٹس، کہ اس نے کوشش کتنی کی مسائل حل کرنے کی۔ پہلے 2 سال میں ہم نے تمام جو مسائل اور صورتحال ہے اس کو اجاگر کیا، اور اب ہم اس وقت اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں آپ کریڈٹ لیں، آپ اتھارٹی لینا چاہتے ہیں آپ اتھارٹی لیں، آپ جو لینا چاہتے ہیں آپ لیں، لیکن اس سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے محروم شہر کی محرومیوں کا کچھ نہ کچھ مداوع کر دیجیے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہم سے مدد چاہیے، جو ہمارے بس میں ہوگی، وہ ہم دینے کو بھی تیار ہیں۔ اگر اب اس آفر کے بعد بھی اگر سندھ اور شہر کراچی بالخصوص جو سندھ کا سر کا تاج ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، پاکستان کا سب سے پاپولر شہر ہے، سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے، پورے وفاق کو 60% ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے، اس شہر کی بدحالی کی داستان کے اوپر، اور یہی پاکستان کا اکنامک انجن، اگر اس کا انفراسٹرکچر اور اس کے عوام کو سروس ڈیلیوری نہیں ملے گی تو عوام بھی بدقسمت، اور جو اس کے حکمران ہیں ان کے لیے جو لفظ میری زبان پہ آتا ہے وہ میں آپ کے میڈیا پہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے 12 سال سے تو کوئی ڈیلیوری ہوئی نہیں، اب 13 سال میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ میاں سب کو ایک عقل سلیم عطا کرے کہ ہمیں عوام کے دکھ درد کا کچھ احساس ہو جائے، اور ہم ان عوام کو کچھ نہ کچھ سرو کر کے دکھا دیں۔ کہیں بھی جائے بات، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پارٹی کا کیا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا کیا ہوتا ہے، کس کی پاپولیرٹی ہوتی ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، یہ اب سیکنڈری چیز ہو گئی۔ جب لوگ بارش کے پانی میں ڈوبنے لگے، بارش کے پانی ہو جائے تو لوگ 1 2 نہیں 20 لوگ کرنٹ سے مر جائیں، جب زندگی کا نظام درم برم ہو جائے، جب اس صوبے میں اس شہر میں گرمی ہو تو 1500 لوگ گرمی سے مر جائیں، 3 دن میں 1500 لوگ گرمی سے مر جائیں، جس شہر میں 14 سال سے کم پرانی بس نظر نہ آئے، جس شہر میں بسوں کے اندر کم اور بسوں کی چھت پہ زیادہ لوگ سفر کرتے ہوں، جس شہر میں 55% آبادی کو نلکے میں پانی نہیں آتا ہو،
जिस शहर का सीवरेज का पूरा पानी खुले समंदर में बगैर ट्रीटमेंट के डाल दिया जाता हो, जिस शहर के अंदर 1000 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है और 500 मिलियन गैलन पानी मिलता हो, जिस शहर के अंदर नाजायज बिल्डिंगें ज्यादा बनती हैं, जायज बिल्डिंगें कम बनती हैं, जिस शहर में तजावुजात ज्यादा होते हैं, असली बिल्डिंगें कम बनती हैं। मैं क्या क्या रोना रो किस चीज का रो? जिस शहर के सरकारी दफातर में काम करने वाले कम हो और गोश्त एम्प्लॉय ज्यादा हो, जिस शहर के अंदर जो काम करने आते हो वो सिर्फ चाय पानी पीते हो, डेस्क ऑक्यूपाई करते हो और रिश्वतें लेते हो और डिलीवरी जीरो, जिस शहर के कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए वाले कहते हैं कि हमें 10 से 15% सिर्फ लोग चाहिए काम करने के लिए जो हमारे एक्चुअल एम्प्लॉइज, जहां मेरिट को पूरा नजरअंदाज कर दिया गया हो, जिधर कोटा सिस्टम को इतनी बुरी तरह इस्तेमाल किया गया है, जी बिल्कुल, जिसके ऊपर खुद इसकी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कॉल कर दी। मैं किस चीज की बात करूं? बेशुमार पॉइंट्स हैं फिरदौस शमी नकवी साहब, आपने बजा फरमाया कि जिनका कराची में रहने वाले लोगों को सामना करना पड़ता है। आजिज धामरा साहब, आप हमारे साथ हैं जी? आजिज धामरा साहब, जी आजिज धामरा साहब, आपकी गवर्नमेंट के 12 साल, अभी फिरदौस शमी नकवी साहब ने तफसील से एक एक करके सारे पॉइंट्स गिनवाए, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे सीवरेज का मसला हो, चाहे वहाँ पर जो कब्जा माफिया जो वहाँ पर चाइना कटिंग होती रही है उसकी बात हो, सरकारी दफातर में काम करने वाले कम, गोश्त मुलाजमीन ज़्यादा हों, बिल्डिंग्स नाजायज़ वहाँ पर बनती हों, इजाज़त कितने की हो, बंद कुछ जाता हो, तजावुजात हों, ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर ये पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, ये एक आम आदमी भी कराची का ये रहने वाला पूछता है, तो वो आपसे पूछेगा, आपकी जमात से पूछेगा, 12 साल से आप ही की तो हुकूमत है। इजाजत दे देंगे अजीज दामरा साहब के जाने से पहले। जी फिरदौस साहब, मेरी सिर्फ गुजारिश है, आज अजीज दामरा साहब के साथ मैं बेतहाशा शो करता हूँ कि हम सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अपने आप को सिंध तक महदूद रखें। ये अगर कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां जहां हुकूमत है उसका मुंह इनके मुंह से ज्यादा काला, मैं पहले मान लेता हूँ। आप तब आके जी सिंध की बात कर लें, इसलिए हम सिंध की डिलीवरी की बात करेंगे। ये नहीं कि जी पिशावर में ये हुआ, लाहौर में ये हुआ, इस्लामाबाद में ये हो रहा है और ये हो रहा है, इसलिए इनके पास इसके अलावा कोई कि अगर प्रोग्राम ऐसे चलाना है तो क्योंकि आपने सिंध की बात रखी है, इसको अजीज धामरा साहब को सिंध तक महदूद रहेगा। जी धामरा साहब, पहली बात तो डर गए फिरदौस शमीम नकवी साहब कि मैं चलो पिशावर की नाअहली और कोताही पे बात नहीं करूंगा, मैं वसीम अकरम प्लस की नाअहली कोताही की बात नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा तो डिक्टेट आप ना करें, मगर अगर ये जरूर कहने दीजिए कि ये नेशनल टीवी है, ये सिंध का चैनल नहीं है और पूरे मुल्क के अवाम का जो तकलीफ है वो कराची और पिशावर पे प्रोग्राम करना हो उस दिन पिशावर पे कर ले। जी धामरा साहब, चूंकि आज हम चाह रहे हैं कि फोकस हमारा सिंध पे, कराची पे हो, तो हम चाहेंगे कि उसी पे बात करें। वो जो पीटीआई के मामलात हैं दीगर और सूबों में, विफाक में, वो हम डिस्कस करते भी रहते हैं, करते भी रहेंगे। अभी हम बात सिंध की और कराची की कर रहे हैं। क्यों रहे हैं? देखें, आप चैनल्स का गला दबा सकते हैं, आप सहाफियों की नौकरी खत्म कर सकते हैं, एंकर्स को नौकरियां खत्म करके यूट्यूब पे चैनल खोलने पे मजबूर कर सकते हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्टेट कैसे कर सकते हैं नेशनल टीवी पे बैठ के? ये तो अजीब एक नया तरीका निकाल दिया पीटीआई ने कि आपको यहाँ तक बात करनी है, वहां कराची के इश्यूज पे प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। नालायकी और कोताहियां बाकी सूबों में जो है वहां पे बात न की जाए तो चलो मैं गुड फेथ में आपसे एग्री करता हूँ, गुड फेथ में। अदरवाइज जब बारिश होती है तो वो सिर्फ कराची का इशू नहीं है, वो लाहौर के अवाम भी उससे मुतासर होती है, पेशावर की भी होती है, फैसलाबाद की भी होती है, कोयटा की भी होती है। ये एक जेन्युइन इशू और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी जब बारिश से लोग मुतासर होते हैं, आबादी, इंसानी जिंदगी मुतासर होती है, तो वो खबर तो है ना अपनी जगह, वो न्यूज है अपनी जगह, इसलिए आप उससे आंखें नहीं बंद कर सकते। चलो हम बात करते हैं कराची की। देखें, कराची के हवाले से शुरू से लेके 12 साल की एक कहानी हम सुन रहे हैं। आपकी टीवी पे बैठ के मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कराची के जो इश्यूज हैं, क्या वो सिर्फ 12 साल के हैं, बल्कि 12 साल के अंदर कराची के उन तमाम इश्यूज को हल करने की कोशिश जरूर की गई है। हाँ, उसमें हो सकता है कि हम 100% कामयाब अभी तक नहीं हो पाए हों, मगर
3 टियर गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी की गवर्नमेंट को आप बरी उल्जिमा करार नहीं दे सकते, नालों की सफाई जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर सूबा उनको ताउन करता है, उनको पैसे देता है और उनके साथ मिलकर ये काम करता है। अगर ये काम बिल्कुल सूबाई हुकूमत ने ताउन न किया होता डीएमसी और केएमसी से, तो जो लास्ट बारिश की एक बड़ी धूम मची थी जिसके लिए एनडीए में भाई, तो वो पानी अभी भी सड़कों पे खड़ा हुआ होता नजर आता आपको। ये थोड़ा बहुत भी काम था। और गोश्त मुलाजमीन में एग्री करता हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब से कि वो केएमसी और डीएमसी के जो सैकड़ों और हजारों गोश्त मुलाजमीन है और वो आपके इत्तेहादी हैं अभी, उनको अगर आप टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो तूफान खड़ा हो जाता है कि पीपल्स पार्टी तहस्सुब की सियासत करती है और मुलाजमीन की बात करती है। वो जो 40-40 करोड़ पे केएमसी को एडिशनल सपोर्ट देती है सूबाई गवर्नमेंट, वो सारे पैसे उन गोश्त मुलाजमीन की तनख्वाहों में जाते हैं जो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। लेकिन बल्दियाती हुकूमत तो वहाँ की कहती है हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास वो वसाइल नहीं है, वो इख्तियारात नहीं है। रिस्पांसिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट की भी है और यहाँ पर रिस्पांसिबिलिटी वफाकी हुकूमत की है। मैं मिसाल देना चाहता हूँ आपको एक मिसाल के तौर पर 2 साल से 15 करोड़ पे पर एमएनए एमक्यूएम और पीटीआई कराची से वफाकी हुकूमत दे रही है, तो ये अरबों रुपए में चले जाते हैं पैसे, कम से कम 2 अरब तो हो गए 2 साल में। उसका थोड़ा बहुत काम तो नजर आना चाहिए। बाकी सिंध गवर्नमेंट चोर है, आप बाकी क्लीन चिट दे दें अपने इत्तेहादी लोकल गवर्नमेंट को भी, तो देखें रिस्पांसिबिलिटी सबकी है। मैं कह रहा हूं कि कराची में 100% काम नहीं हुआ है, मगर कंटिन्यूटी के साथ काम करने की जरूरत है। और लोकल बॉडीज जब पावरफुल थी, आप अभी कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने उनके पावर जो है वो जो एक्ट आया था असेंबली में जिसके तहत कानून के तहत ये लोकल बॉडीज इलेक्शन हुई थी, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने छीन लिए हैं इख्तियारात। तो मेरे भाई, जब लोकल बॉडीज के पास पैसा था और जनरल मुशर्रफ के दौर के चर्चे होते हैं कि लोकल बॉडीज को पैसे मिले, तो ये इंक्रोचमेंट कैसे हुई, वो पैसे कहाँ गए। कराची अगर इतना तरक्की याफ्ता शहर था तो 12 साल क्या 24 साल की नायली भी उसको खराब नहीं कर सकती थी। और कराची के अवाम के साथ ज्यादती एक हो रही है। देखें, ये एक आलम आज का बार बात है कि पॉलिटिकल मुखालफत की बुनियाद पर गटर्स में आपने पत्थर डाल दिए, आपने बोरियां डाल दी, उनको खराब किया, ब्लॉक किया, चौक किया, लाइनें खराब हो गई। उसके साथ साथ दूसरा भी इशू हुआ है कराची के अवाम के साथ कि ढक्कन भी चोरी किए गए। कराची के जो ये के साथ ज्यादती हुई है, जो गटरों के ऊपर ढक्कन थे वो अपनी पॉलिटिकल एक ड्रामेबाजी तो लगाते रहे वो पीटीआई वाले आलमगीर साहब फिक्सेड के नाम से काम करते रहे आपकी पार्टी के एक एमएनए के तहत। तो ये सारी जिम्मेदारियां मैं कबूल करता हूं कि सिंध गवर्नमेंट की जहां तक कोताही है, जहां तक काम मुकम्मल नहीं हो सका, मगर उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि उन्होंने काम किया है। कराची में इदारे बने हैं, कराची में अंडरपासेस बनी है और इस गवर्नमेंट में 12 साल के अंदर अंडरपासेस जितनी भी बनी है, कम से कम उसमें पानी जमा नहीं होता। वहां जमा होता है, खासतौर पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुतासर होता है। और उनकी चेयरमैनशिप अभी भी फिरदौस शमीम नकवी साहब के इत्तेहादी जमात के साथ है, जिनको सूबाई गवर्नमेंट OZT फंड भी देती है और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी देती है एडिशनल फाइनेंसिंग के साथ। दामरा साहब, हम एक वक्फा ले लें सर, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हम लौट कर आएंगे। तो जो आपने रिस्पॉन्ड किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ से उठाए गए पॉइंट्स पर, इस पर हम बात को आगे बढ़ाते हुए फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो आपने फंडिंग की बात की है, पीटीआई और एमक्यूएम के एमपीएस को, एमएनएस को जो फंडिंग मिली है गुज़श्ता 2 साल में, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने धामरा साहब को सुना, उनका कहना है कि जी एक तो उन्होंने वो फंड्स की बात की कि जो पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस को गुज़श्ता 2 साल में फंड्स मिले हैं, वो फंड्स कहाँ पर लगे। और उन्होंने कहा है कि हमने मसाइल अभी भी हैं लेकिन हमारी कोशिश है, और जो ये 12 साल की बात की जा रही है, इससे पहले भी जो कुछ होता रहा है वो भी सबके सामने है। और अब भी उन्होंने कहा है कि जी हम हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, वफाकी हुकूमत को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पहली चीज तो ये कि जिस किसी ने भी कराची के साथ जुल्म किया, और एमक्यूएम लंदन ने सबसे ज्यादा जुल्म किया, अल्ताफ हुसैन और उसके हवारियों ने सबसे ज्यादा जुल्म किया, और इस शहर की तबाही में जिसने अल्ताफ हुसैन को पार्टनर बनाया उसने उससे ज्यादा बड़ा जुल्म किया जी। इससे कि जानते बूझते कि वो किस किस्म की शख्सियत है, इन लोगों ने उसको नौकरियां 10-10 हजार नौकरियां बीबी ने दी कि KWSB में तुम्हें 10,000 एम्प्लॉइज रखने की इजाजत है। डिनाई कर दें कि नौकरियों पे ट्रेड ऑफ नहीं हुए, सपोर्ट ऑफ एमक्यूएम। हमारे साथ तो वो फेडरल गवर्नमेंट में
اور جو 11 نکاتی معاہدہ وہ سامنے ہے. یہ نوکریوں کی ٹریڈنگ کس نے کی تھی؟ دینا جواب. پارٹنر تو ان کے تھے, ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی پارٹنر بنانے کی, اور اب یہ تھوپ رہے ہیں ہمارے اوپر. تباہی کے ذمہ دار یہ ہیں, ان کو سپورٹ یہ دیتے تھے, ان کے کرمنلز کو یہ پکڑتے نہیں تھے, انہی نے چیف منسٹر ان کا تھا, لیکن چائنا کٹنگ یہ ہونے دیتے تھے. کیا عجیب بات کرتے ہیں, یہ کتنا آسان طریقہ ہے. 2012 سال ہو گئے, کراچی کا ایک پانی کا منصوبہ نہیں مکمل ہو رہا ان سے, سیوریج کا منصوبہ نہیں مکمل ہو رہا. ان کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں کتنی ہزار بسوں کا وعدہ کر چکے, ایک بس آئی نہیں. کمال کی بات ہے. کوڑا اٹھتا نہیں, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنائی کیوں تھی؟ چلو یہ یہاں سے نہیں اٹھتا, لڑکانہ میں اٹھا کے دکھا دیتے, اس کو صاف ستھرا شہر کر دیتے, سکر کو صاف ستھرا کر دیتے. یہاں تو کمبخت لوگ ہیں کراچی کے. آپ سے تو کہیں گا بھی سندھ کا کوئی شہر نہیں صاف ہو کے دیتا. کوئی ایک مثالی شہر بنا کے دکھا دیتے, دیکھو کراچی والے بڑے ذلیل ہیں, جو ہے وہ ڈھکن میں ڈال دیتے ہیں, ڈھکن چوری کر لیتے ہیں, موریاں ڈال دیتے ہیں, بہت کتے ہیں کراچی والے. بھائی سکر کو شہر کو میں ایسا بنا دو کہ لوگ کہیں کہ یہ جو ہے مشرق کا پیرس ہے. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں کہ لاہور میں پانی آتا ہے. میں نے کہا کراچی کو لاہور جیسا بتا دو یار, چھوڑو. جو کچھ لاہور میں ملتا ہے لوگوں کو, سہولت شہریوں کو, وہ کراچی کو دے دو. میں تمہارے گھر میں در پہ آ کے جو ہے تمہیں شکریہ بھی ادا کر کے جاؤں گا. فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کو آپ کے ایم این ایس کو, پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو, ایم کیو ایم کے ایم این اے اور ایم پی ایس کو کیا فنڈز نہیں ملے؟ فنڈنگ کی بھی بات کر. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے, یہ فنڈنگ ہے ایس ڈی جی گولز کی اچیومنٹ کے لیے, اور یہ ایس ڈی جی گولز کی اچیومنٹ کے لیے یہ فنڈ جو ہیں اور کام جو ہو رہا ہے وہ پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے ہو رہا ہے, پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ. یہ ضرور ہے کہ باقی جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پنجاب میں, کے پی میں اور بلوچستان میں ہوئے, اس کے فنڈز ریلیز ہوئے, سندھ کے فنڈز ریلیز نہیں ہوئے. تو کمٹمنٹ ضرور ہے, اسکیمیں ایم این ایز نے دی ہیں, ایگزیکیوٹنگ ایجنسی پاک پی ڈبلیو ڈی ہے. کام ابھی ہارڈلی 3 یا 4 کانسٹیٹوئنسیز میں شروع ہوا ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو یہ اربوں روپے کی دھاندلی کہاں نظر آ رہی ہے. کہاں نظر آئے گی؟ فنڈز کیوں نہیں ریلیز ہوئے فردوس شمیم نقوی صاحب؟ نیب از این اوپن آپشن. ہم تو کہتے ہیں کہ پارٹی میں کوئی بھی چوری کرے, چاہے فردوس شمیم نقوی کرے چوری, ان کو بھی پکڑو. ہم تو اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف ہیں ہی نہیں, ہم تو پرو اکاؤنٹیبلٹی لوگ ہیں. اور اس ملک سے جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا اس ملک کے مسائل. لیکن فنڈز کیوں نہیں ملے آپ کو فردوس صاحب؟ اب پارٹی میں ہو, فنڈز جو کیوں نہیں ملے؟ آدمی بھی چوری کرے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. میری پارٹی سے کوئی کرے گا, میں اس سے خود بھی جواب لے گا, عوام کے سامنے بھی لاؤں گا, اور جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بورڈ ہے اس سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ایم این اے سے کڑی نظر رکھیں. ایم پی ایس کو تو کوئی پیسے ملے نہیں, ٹھیک, لیکن ایم این ایس کو جو اگر کوئی, انہی نے بھی اسکیمیں دی ہیں, ان کے ہاتھ میں کوئی پیسے نہیں آتے, تو اسکیمیں انہی نے ضرور پروپوز کی ہیں کہ میرے علاقے میں یہ کام کر دو, اور اس پہ جو اسکیمیں دینی ہے وہ ہر ایم این اے کی. ٹھیک ہے, عاجز دامرا صاحب, آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کو سنا, اور اس بات میں وزن ضرور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اتحادی ہے پی ٹی آئی کی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اتحادی ہیں, لیکن یہ ایم کیو ایم اور ہے, وہ ایم کیو ایم اور تھی کہ جس نے کراچی شہر کو نقصان پہنچایا, اور یہ چائنا کٹنگ اور دیگر جتنے بھی ایشوز تھے یہ اس دور میں ہوتے رہے, اور آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے حکومت چلاتے رہے, صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی. تو آپ اس میں برابر کے شریک تھے, آپ نے اپنے سامنے یہ سب ہونے دیا, گوشت ملازمین کو بھی بھرتی ہونے دیا, انکروچمنٹس بھی ہونے دی, ایسی بلڈنگز کی تعمیر بھی ہونے دی کہ جہاں پر الاؤڈ کچھ تھا, اجازت کچھ کی تھی اور بنا کچھ. اور یہ جو چائنا کٹنگ ہوئی یہ بھی آپ نے سب اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا, چیف منسٹر آپ کا تھا, اور اس دور میں ہوا کہ جب آپ اتحادی تھے ایم کیو ایم کے ساتھ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ الطاف سندھ ڈائریکٹ کوئی اس وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے منسٹر نہیں تھے, چہرے تو وہی ہے نا. تو اس لیے یہ ایم کیو ایم اور وہ ایم کیو ایم کی کیا کہانی سنا رہے ہیں اور کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم ہے, اس لیے الطاف سندھ اس وقت بھی باہر بیٹھا ہوا تھا, ابھی تو اس کا وجود بھی ختم ہے. چہرے تو وہی ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے. آپ لندن گئے تھے پیچھا کرنے, آپ نے یہاں کی ایم کیو ایم کے اوپر زہرا بیگم کے قاتل ہونے کا الزام لگایا تھا, اس لیے آپ بری الزامہ نہیں ہوتے. چلو آتے ہیں ابھی فردوس شمیم صاحب, اس نے یہ تو نہیں کہا کہ فنڈ ملے یا نہیں ملے, آپ کو الاٹ ہوئے نہیں ملے, آپ کی نااہلی کوتاہی ہے. چلو ہمارے اوپر تو آپ نے الزام لگا دیے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ کام کرنا نہیں چاہتے. جہاں تک گوشت ملازمین کا تعلق ہے تو کے ایم سی
जो है वो खुद पावरफुल थी, और उस केएमसी जो मुशर्रफ के दौर में जितने पावर्स इनके पास थे, तो मैं तो वही कह रहा हूं कि जब आइडियल सिचुएशन थी इनके लिए, तब क्या हुआ कराची के लिए। तो ये तनकीद जितनी सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में आती है बेशक करें, मैं डिनाई नहीं करता तनकीद से, ना आपको कह रहा हूं तनकीद ना करें, दिल खोल के तनकीद करें, मगर तनकीद सहने का भी हौसला रखें ना। अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में अगर कोई करप्ट हुआ, ये हुआ, देखें ऐसा नहीं करें, आपको पार्टी से ना निकाल दे पीटीआई, क्योंकि अभी खान साहब ने फिर से तारीफें करना शुरू कर दी है। वो चीनी कमीशन जिसके ऊपर आप बड़े भंगड़े डालती है पीटीआई, वो जो तरीन साहब हैं वो बाहर चले गए, वापसी की कोई डेट नहीं। अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस शख्स की तारीफें कर रहे हैं, एनआरओ दे रहे हैं उनको। तो इसलिए ये बात छोड़ दे, दवाइयों के किकबैक्स में जो आपके क्यानी साहब हैं उनको आपने पार्टी का ओहदा दे दिया है, आटे के चोर हैं वो अभी भी काबीना में बैठे हैं, चीनी के जो चोरी का इल्जाम है वो लंदन बैठे हुए हैं, और आपकी पार्टी में मेन हिस्सेदार है। इसलिए ये बात ना करें आप, ये बेवकूफ ना बनाएं। हाँ, गवर्नर्स में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, वो तनकीद करें, हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर आप भी क्रेडिबल नहीं है, आप भी क्रेडिबल नहीं है। धामरा साहब ये बता दीजिए, मैं आपकी जात पे बात नहीं करता, आप जाती तौर पर होंगे। जी फिरदौस साहब, कोई जीआईटी बनी है जिसके अंदर नाम आए हुए? आपका तो चल वजीर आला बैठा हुआ है जिसके ऊपर जीआईटी बनी है। आपके पार्टी से जो सब इस मुल्क पर भारी है, तो पंजाब के वजीर आला को बांग्लादेश में कौन सी है? अगर आप तो मॉरिशस सियासत पर यकीन रखने वाले जो इमरान खान के नामी नुमाइंदे हैं उसको नेक बुला रही है, आपका असर देखते हैं जी। आपको इतनी हद तक जा रहे हैं, वसीम अकरम आपकी पार्टी की शक्ल तब्दील हो जाती है बिलावल जरदारी करते हुए। वसीम अकरम की तो बता दें वो नेक में क्यों पेश हो रहे हैं? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं धामरा साहब? फिरदौस एक वक्त पे दोनों में से प्लीज आप एक बात करेंगे तो जरा बात सुनने में भी आसानी होगी, देखने वाले व्यूअर्स बात को समझ भी पाएंगे। बन्नी गाला से, क्योंकि वो खान साहब के चहीते हैं वसीम अकरम प्लस। लेकिन मुझे ये बताइए कि वसीम अकरम प्लस से कराची में जब पानी खड़ा हो जाता है धामरा साहब बारिश होने के नतीजे में, और सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही होती हैं, यूं लगता है कि जिस तरह आप सी व्यू पे हैं खड़े हुए, इसका वसीम अकरम प्लस से तो कोई ताल्लुक नहीं। जो नहीं होनी चाहिए कराची में भी नहीं होनी चाहिए। जी धामरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जहां तक चीफ मिनिस्टर का ताना दे रहे हैं तो आजकल वसीम अकरम प्लस सारी पार्टी उसके खिलाफ है, मगर खान साहब के वो खास चहीते हैं, और ये उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जाम है ये इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम आते हैं। और रियासत मदीना के चीफ मिनिस्टर ने, सर मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि सर उसमें जो सर वसीम अकरम प्लस जो हैं वो करप्ट होंगे सपोजिटली, वो नाअहल होंगे, नालायक होंगे, कह देते हैं आप, मान लेते हैं, लेकिन कराची में जब पानी खड़ा होता है तो उससे वसीम अकरम प्लस का कोई ताल्लुक नहीं है। सर हम इसलिए कराची के इशू पे फोकस करके जानने की कोशिश करें कि कराची में ये मसाइल क्यों अभी तक हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा है ना, जिस तरह लाहौर भी है। जब ड्यूरिंग बारिश के दौरान पानी खड़ा होता है, मगर वो पानी बाद में निकल भी जाता है, ये खबर क्यों नहीं बनती? जिस तरह लाहौर में खड़ा हो जाता है, घरों में चला जाता है, कचरे के साथ चला जाता है, पेशावर में चला जाता है, तो कराची को आप पाकिस्तान से बाहर तो नहीं करेंगे कि कराची एक तरक्की याफ्ता मुल्क का एक शहर है। यही सिचुएशन लाहौर की है, यही कराची की है, यही पेशावर की है कि जब बारिशें है, ड्यूरिंग बारिश इस तरह की सिचुएशन है। और दूसरी बात, जो लोड शेडिंग होती है जिसकी वजह से मशीनें नहीं चलती और पानी नहीं निकलता, उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसके पास है? फेडरल उसका भी इल्जाम लगा दे मुराद अली शाह के ऊपर। ठीक है, ये लोड शेडिंग वाले इशू पे कि 24-24 घंटे 48-48 घंटे कई इलाकों में बिजली नहीं आती, इसी पर हम फिरदौस साहब की पॉइंट उनकी राय जानेंगे। जी पूरी सिंध में ये सूरत हाल है जी धामरा साहब, उस पर हम राय जानेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब की, लेकिन उससे पहले हमें लेना एक मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। फिरदौस शमीम नकवी साहब, तमाम इशूज़ जो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और उसमें सिंध गवर्नमेंट की जो अप्रोच या जो उनका तरीक़ेकार रहा है उस पर आपकी जमात की तरफ से तनकीद होती रहती है, लेकिन आपकी जमात की भी जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उनको भी तस्लीम करना ज़रूरी है टू गो फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड। कराची में जो 24-24 घंटे 48-48 घंटे जो लोड शेडिंग, अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ से शिकायत मिल रही है। इस बिजली के इशू के ऊपर विफाक ने क्या किया? आपने अपनी पार्टी से, जिसकी विफाक में हुकूमत है, आपने अब तक जो उनसे मामलात को तय पाया है वो क्या तय पाए हैं? क्योंकि नजर नहीं आ रहा है कि कुछ मसला हल हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है आपका। पहली चीज ये है कि के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे नहीं है, उसकी जिम्मेदारी वफाक पे है।
ना मैं पंजाब पे डालूंगा, मैं केपी पे डालूंगा, ना मैं किधर उधर जाऊंगा। अच्छा, एक है इनहेरिटेड सिचुएशन और एक है सोल्यूशन। इनहेरिटेड किस तरह हुआ उसको मैं बाद में कवर करूंगा, सोल्यूशन को पहले कवर कर जी लेंगे। बिल्कुल। इस वक्त कराची की इस वक्त जो डिमांड है बिजली की वो है 3700 से 3800 मेगावाट। कराची इलेक्ट्रिक को जितनी बिजली मिल रही है और जितनी वो प्रोड्यूस कर सकती है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी, चाहे वो उल्टे लटक जाए, 3100 मेगावाट से ऊपर नहीं जा सकते। 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल कराची में थ्रू आउट दिस समर रहेगा। एक तल्ख हकीकत है, लेकिन हम इससे मुंह नहीं छुपाएंगे। ये हमने जितनी रिसर्च की है हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। अर्लीस्ट इम्प्रूवमेंट जो आ रही है वो आएगी नवंबर दिसंबर के महीने में कि जामशोरो की लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है और उससे 300 मेगावाट बिजली और आ जाएगी। उसके बाद अगली इंप्रूवमेंट जो आएगी वो अप्रैल में आएगी, जिसमें 700 मेगावाट बिजली की एक नई लाइन जो डाली जा रही है वो ऑपरेशनल हो जाएगी। उसके बाद अगली इंप्रूवमेंट जो आएगी वो के इलेक्ट्रिक का एक निया पावर प्लांट है जो एलएनजी पे है, जो कि 450 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, लेकिन 200 मेगावाट बिजली के प्लांट बंद भी किए जाएंगे। 250 मेगावाट बिजली का इजाफा अगले साल मई में होगा। ठीक है। उसके बाद उससे अगला इजाफा जो है वो अगस्त 2021 में दूसरा प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके 2 प्लांट एक साथ बनने शुरू हुए थे, उन दोनों के ऑपरेशनल टाइम में 4 से 5 महीने का फर्क है। उसका जो है वो 450 मेगावाट मजीद बिजली आएगी। उसके बाद जो अगली आएगी वो अप्रैल 2022 के अंदर आएगी, जो कि एडिशनल 700 मेगावाट की एक लाइन है जो नेशनल ग्रिड से आएगी। जब ये तमाम बिजली आ जाएगी, जिसमें 1700 मेगावाट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नेशनल ग्रिड से दे रही है और 900 मेगावाट वो के इलेक्ट्रिक खुद पैदा कर रही है, 2600 मेगावाट पैदा होगी, 200 मेगावाट जो है फिरदौस साहब साथ में इस नुक्ते को भी जहन में रखना चाहिए कि ये जो बिजली प्रोड्यूस होगी इसकी कॉस्ट क्या होगी, प्रेडिक्शन के लिहाज से, क्योंकि अवाम से ली जाएगी, अवाम से ये रकम पूरी की जाएगी, कॉस्ट उसको ऑपरेट करने की और उसको बनाने की, तो कॉस्ट भी बड़ी मैटर करती है कि अवाम को चलें बिजली तो आप दे देंगे इन मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए, लेकिन किस कॉस्ट पे। अच्छा देखिए, अब बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं समझता हूं अवाम सारी ज़ीशऊर है। जितने बिजली घर 2018 के बाद साइन होंगे उसकी जो भी कीमत होगी उसकी जिम्मेदारी वफाक की है। जो 2018 से पहले साइन हुए हैं वो एग्रीमेंट्स के ऊपर आपको तारीफ करने पे मजबूर होंगे कि वफाक ने आईपीपी के साथ बैठ के उनसे रीनेगोशिएट किए हैं और वो कीमत कम कराई है। लेकिन वो माजी के एग्रीमेंट जो कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की है, उसकी जिम्मेदारी बिजली महंगे होने की वो हमें नहीं दी जा सकती। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला है जो कि मेरे ख्याल से अवाम को इतना आया नहीं है। तो हुआ ये है कि माजी के दौर में, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब के जमाने में, बिजली घर ज्यादा लगा दिए गए और उसके बिजली की तरसील के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस चाहिए थी वो नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से हमें एडिशनल पेमेंट करना पड़ रहा है लेकिन बिजली नहीं इस्तेमाल कर पा रहे उसको। तो ये भी अपनी जगह बिजली को महंगा करने की एक वजह हो जाती है। ठीक है। हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत आप सुन चुके हैं, मैं दोबारा नाजरीन के लिए कह देता हूं, हमारा अब जोर जो है वो है हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर के ऊपर। जो फॉसिल फ्यूल वाली बिजली है जिसे थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट्स कहते हैं, उसके ऊपर हम इतनी तवज्जो नहीं देना चाहते। ठीक है धामरा साहब, थर्मल में भी हम जो है वो डोमेस्टिक फ्यूल्स के ऊपर ज्यादा इंतजार करेंगे। तो जो थर में कोला निकला है तो हम कोल प्लांट्स के लगाने के तो हक में, इससे कि वहां फॉरेन एक्सचेंज नहीं इस्तेमाल। ठीक, धामरा साहब आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब से बिजली के इशू पर तफसील सुन ली कि किस किस तरह से कब कब जो है ये बिजली की जो प्रोडक्शन है, बता दें पानी कैसा आएगा, सीवरेज का निजाम कब सही होगा, जी धामरा साहब कब आएंगी, कोई तारीख दे दें। जी, ये बिजली वाला गिला तो दूर कर दिया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने।
धामरा साहब। हेलो जी धामरा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। बिजली का जो गिला है वो तो दूर कर दिया, ये बाकी जो शिकवे हैं। मैंने बातें सुनी है। देखें, पहली बात तो ये है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने वो सारी कहानियां सुनाई जो पीटीआई की कहानियां हम सुनते रहेंगे कि ये कर देंगे, हमारे एमएनएस के फंड अभी तक नहीं मिले हैं, वो मिलेंगे तो हम लगा देंगे, बिजली को हम सस्ता बना देंगे। देखें, ऑलरेडी सिंध में 650 मेगावाट बिजली बन चुकी है जो नेशनल ग्रिड में चली जा चुकी है, एंग्रो बिटवीन सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। 100 मेगावाट बिजली हमने बनाई थी जो हेस्को ने प्रॉमिस किया था सूबाई गवर्नमेंट से कि हम लेंगे, मगर हेस्को ने अचानक नहीं ली। उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन प्राइवेट कंपनी के थ्रू गई और ये के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली जो जमपीर नूरियाबाद की है वो चली गई है। उसके बाद इंशाल्लाह जो थरपारकर में आप देखेंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं थरकूल के, जो उसमें 1 साल के अंदर आप और जो कंप्लीट होगा हमारा, उसमें सिंध इतनी बिजली देगा नेशनल ग्रिड में और पूरे पाकिस्तान की बिजली होगी। पूरे अच्छी बात है सर। वो जो पानी का और सीवरेज का मसला है, नालों का मसला है, मैं आपको बताता उस पर जरा आ जाइए। ये बात एडमिट करेंगे ना फिरदौस शमीम नकवी साहब के, सिर्फ के इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है, सेपको और हेस्को के अंदर जो मार लोडशेडिंग है वो अभी तक बरकरार है। पूरे पाकिस्तान की बिजली का पूछते तो मैं वो भी बता देता। हेलो जी जी धामरा साहब, देखें, ये बात एडमिट कर लें, हेस्को, सेपको और के इलेक्ट्रिक की मौजूदा हुकूमत की जो नाअहली है वफाकी सतह पर, जो लोड शेडिंग अभी तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ये नाअहली भी कबूल कर दें। इन फ्यूचर प्लान तो जाहिर हुकूमतों के पास होते हैं। पानी का जो इशू है, जाहिर है कराची के अंदर जो पॉपुलेशन कितनी बड़ी तादाद में जो बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट है, लाइनों का इशू है। एक केस पड़ा है वफा के पास 1200 क्यूसेक पानी का, वो फिरदौस शमीम नकवी साहब अगर दिला दें कराची के लिए स्पेशल, उसमें बाकी सूबे के किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा, तो वो अगर ये दिला देंगे तो और भी आसानी हो जाएगी कराची के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। धामरा साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया, और धामरा साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची का इशू जो है वो डिस्कस होता रहता है, कराची के इश्यूज डिस्कस होते रहते हैं और वो हम करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि इन इश्यूज को सामने लाया जाए। और फिर हमारी ये कोशिश भी है कि इन इश्यूज पे इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एक दूसरे के साथ बिठा के डिस्कशन में इस मौजू को डिस्कस करके इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, और जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ कराची, लोगों की खातिर, क्योंकि लोगों के लिए ही ये सब किया जा रहा होता है। सियासत भी लोगों के ही नाम पर की जा रही होती है, लोगों के वोट से ही मुंतखब हुआ जाता है, तो फिर लोगों को जवाब देना भी जरूरी होता है, और लोग जवाब सुनना चाह रहे होते हैं। और नेशनल टेलीविजन पर यकीनन लोग इस डिबेट से चाहते हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन सामने आए। तो आई होप कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने एक तरफ रख के, जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है इसको भी छोड़ के, फॉर द सेक ऑफ कराची, फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ कराची, कराची के इश्यूज को हल करें। जैसे कि अमन अमान का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि सूरत हाल बहुत बेहतर है। इसी तरह से बाकी इश्यूज को भी वैसे ही हल किया जाए, उन्हीं लाइंस पे चलते हुए उन इश्यूज को भी हल किया जाए। मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह की खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।